Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So, today we are here with the fourth lecture of matrices. If you have any query or doubt regarding whatever we have studied so far, let me know in the comment section. In the previous lecture, we discussed some of the questions related to matrix multiplication, the properties of matrix multiplication, the commutator and anti-commutator bracket. Then we started some of the basic operations which we perform on matrices to get the new matrix. And in continuation to these operations, we'll today discuss about some of the properties of transpose of the matrix, and then we'll move towards the next two operations, which are complex conjugation and Hermitian conjugation. Then we'll move towards the trace of a square matrix. So without further delay, let's get started. In the previous lecture, we studied about the transposition operation, and we studied that if we perform transposition operation on a given matrix, then we get a new matrix which we call as transpose of the original matrix. So let's say we have two matrices here, A and B, and the transpose of matrix A is denoted as A superscript T, and the transpose of matrix B will be denoted by B superscript T. Now, what are the properties of these transpose of matrices? Do they follow some special properties? Let's see. So the first property is, if we take the transpose of transposed matrix, then we get the original matrix. इसका मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स A है, अगर उसका हम दो बार ट्रांसपोज ले लें, then we'll get the same matrix A. इसे हम एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if we have a matrix A like this 1 2, then we take the transpose of this matrix. A ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, A की ये जो फर्स्ट कॉलम है उसे हम रो में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ दिस विल बिकम अ रो. So this is A transpose. Let's say this matrix is B. Now we have to find out B transpose. B transpose means taking the transpose of A transpose matrix. So what we will get, now this B matrix is 1 2. It has only one row. To find out B transpose, we'll convert this first row to the first column and we'll get this 1 and 2. तो यहाँ पर B transpose and A both are same, and B was what? It was A transpose. So this means A transpose to the transpose gives me same matrix A. So this is an important property for the transpose of a matrix. If we take transpose of transposed matrix, we get the original matrix back. If we want to take the transpose of a sum matrix, that means if we have two matrices A and B and we take the sum of them, that means we take A plus B. Now what will be the transpose of A plus B? This will be same as the transpose of individual matrix when added. तो यहाँ पर A plus B का ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिसेस का इंडिविजुअली ट्रांसपोज ले लेंगे एंड देन ऐड कर देंगे. देन वी विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. Now here the condition is that the addition of these two matrices should be defined. यानी कि यहाँ पर A और B हमें matrices इस तरह से चूज करने हैं कि इनका addition defined हो. अगर A और B का ऑर्डर सेम होगा, then A transpose and B transpose का ऑर्डर भी सेम होगा. For example, the order of A is 2 cross 3, let's say, and the order of B is also 2 cross 3. तो अगर A और B का ऑर्डर सेम है, then they are comparable and their addition will be defined. अब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की बात करें तो अगर मुझे A का ऑर्डर पता है तो A के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? This will be 3 cross 2. In the previous lecture, we discussed that the order of matrix A is m cross n, and then the order of A transpose will be n cross n. तो यहाँ से अगर A का ऑर्डर 2 cross 3 है, then A ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 cross 2 हो जाएगा. एंड B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? इट इज 3 cross 2. तो अगर A और B का ऑर्डर सेम है, देन यहाँ से हमने देखा कि A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज का ऑर्डर भी सेम रहेगा. The third property is, for a scalar k,
द ट्रांसपोज ऑफ के ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ट्रांसपोज की हमने बात की मैट्रिसेस के लिए। ट्रांसपोज ऑपरेशन इज ओनली परफॉर्म्ड फॉर मैट्रिसेस। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के केस में ट्रांसपोज का कोई मीनिंग नहीं होता। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स के ए लाइक दिस, ठीक है, जैसे हमारे पास 5A मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड 5A मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज लेना है, देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं 5 का ट्रांसपोज तो नहीं ले सकती बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ अ नंबर इज मीनिंगलेस। तो ये जो नंबर है दिस विल कम आउट एज इट इज एंड वी विल गेट 5 into A transpose. So this is how we can find out the transpose of matrix like KA. यहाँ पर K एक स्केलर है which can be a real number or a complex number. Next property is reversal law. Now this is an important property. रिवर्सल लॉ ये कहता है कि अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज मुझे लेना हो तो दिस विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इफ द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट प्रोडक्ट मैट्रिक्स शुड बी डिफाइंड। नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे ए बी के ट्रांसपोज को ओपन करना है तो मैं राइट टू लेफ्ट ओपन करूंगी, ठीक है। फर्स्ट आई विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ बी and then I'll take the transpose of A, then I'll multiply both of them. Last property of transpose of the matrix is A raised to power n transpose. So according to the fifth property, A raised to power n का अगर मुझे ट्रांसपोज लेना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली मैं इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ले लूंगी and I'll multiply this A transpose n times to get A raised to power n transpose. तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि A raised to power n is defined only when A is a square matrix. A यहाँ पर square matrix होनी चाहिए because in the previous lecture we discussed that A square और A cube and up to so on जितनी भी powers होंगी A की वो तभी defined होंगी अगर A एक square matrix होगी तो this A raised to power n will be defined if A is a square matrix. The next operation is complex conjugation operation. Now what is the complex conjugation operation? Transposition operation में हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स थी उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया और जो भी उसके कॉलम्स थे उसे हमने रोज बना दिया, तो हमारे पास एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पर। Now we know that matrix has the elements as complex or real. For example, if we have a matrix A such that this is iota minus 1 3 minus iota, ठीक है, तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल भी हो सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में हमने एक चीज पढ़ी थी दैट वाज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस 3 plus iota. So we define complex conjugate of this complex number z as 3 minus iota. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस करने पर हमें उस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यही चीज हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ करनी है। अगर जैसे ये एक मैट्रिक्स A है, इसके हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूं तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स बनेगी एंड दैट मैट्रिक्स विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं किसी भी मैट्रिक्स पर तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स बनती है एंड दैट न्यू मैट्रिक्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स। That means the complex conjugate matrix is a matrix which is obtained by taking complex conjugate of each element of the given matrix. जो complex conjugate matrix होगी this is denoted by A star. अगर मेरे पास कोई matrix A है then complex conjugate matrix of this A will be denoted as A star. जो complex conjugation लेने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से चेंज होता है, जैसे ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन में हमने देखा रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है।
तो क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन में भी ऐसा होता है? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन A स्टार का ऑर्डर भी सेम ही रहता है, A स्टार का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। द ऑर्डर ऑफ A इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ A स्टार। फॉर एग्जाम्पल, we have a matrix A like this, 3 minus 2 iota, iota, 4 plus iota and minus 3. Then what will be the conjugate, complex conjugate of this matrix A? सबसे पहले मैट्रिक्स A की जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा उसे हम A स्टार से डिनोट करेंगे। एंड हाउ वी विल फाइंड द A स्टार मैट्रिक्स? तो A स्टार मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A के हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A इज 3 minus 2 iota। इस 3 minus 2 iota का जो भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा वो हम यहाँ पर पुट डाउन कर देंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस कर देंगे इन दिस एलिमेंट। तो दिस विल बिकम 3 minus 2 आयटा की जगह माइनस आयटा रख दिया एंड वी गेट 3 plus 2 आयटा। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A स्टार इज 3 plus 2 आयटा। सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट होगा A का, दैट इज आयटा। नाउ दिस आयटा, इसका अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना हो तो हम आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस कर देंगे। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ A स्टार विल बी माइनस आयटा। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स होंगे A में उन सबका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर हम A स्टार में रख देंगे। जैसे 4 प्लस आयटा, ये थर्ड एलिमेंट है A का। अब 4 प्लस आयटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने के लिए आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस कर देंगे, देन वी विल गेट 4 minus आयटा एज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 4 plus iota, and this will also be the A21 element of A star. Now the last element is -3. अब -3 यहाँ पर जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स के केस में जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा दैट इज द सेम रियल नंबर। तो यहाँ पर -3 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हम A स्टार लिखते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स A विल राइट डाउन दिस वे। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे एंड देन वी विल put them down in form of matrix and will get A star. Now this A star का अगर हम ऑर्डर देखें तो A का ऑर्डर अगर हम देखें तो it has 2 cross 2 ऑर्डर, ठीक है, एंड A स्टार का ऑर्डर अगर हम देखें तो it has सेम ऑर्डर 2 cross 2। तो यहाँ से हमने ये देखा कि A and A star both have the same order. Unlike the ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन में ऑर्डर सेम रहता है। नेक्स्ट थिंग, एलिमेंट्स पर क्या होता है, जैसे अगर मैं ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन की बात करूं तो ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन के केस में ijth एलिमेंट ऑफ A was equal to jith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। नाउ व्हाट विल हैपन टू द एलिमेंट्स ऑफ A स्टार? A स्टार का जो ijth एलिमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ A। क्योंकि यहाँ पर हम हर एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, तो A के ijth एलिमेंट का जो भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा दैट विल बी द जनरल एलिमेंट ऑफ A स्टार। A स्टार का ijth एलिमेंट इज इक्वल टू Aij स्टार, जहां पर Aij क्या है, A का एक जनरल एलिमेंट है। तो यहाँ पर दो चीजें हमने नोट की कि ऑर्डर जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स एंड ओरिजिनल मैट्रिक्स दोनों का सेम रहेगा। And to find out any element of A star, we have to take the complex conjugate of corresponding element of A. So in short, first of all, we had matrix A which had the order m cross n. Then we performed the complex conjugation operation on A and we got the matrix A star which is known as complex conjugate matrix, and the order of complex conjugate matrix is same as that of original matrix A. So complex conjugation operation means कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है एंड कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में उसे रख देना है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A whose complex conjugate matrix is given as A star and we have the second matrix B whose complex conjugate matrix is B star. First property of transpose was, अगर हम एक ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लें तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। बिल्कुल सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन के केस में भी होल्ड करती है। अगर एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स का फिर से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया जाए देन वी गेट द मैट्रिक्स बैक।
सेकेंड प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज के केस में ये पढ़ी थी कि अगर मेरे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है, उसका ट्रांसपोज लेना हो तो मैं क्या करूंगी, इंडिविजुअली दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लूंगी। ए का ट्रांसपोज ले लिया, बी का ट्रांसपोज ले लिया एंड देन आई ऐड देम। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन के केस में भी है। अगर मुझे ए प्लस बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना हो तो मैं क्या करूंगी, ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूंगी, बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूंगी, फिर दोनों को ऐड कर दूंगी। सेम कंडीशन इज हियर विच एग्जिस्टेड इन केस ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में भी हमने ये डिस्कस किया था कि ए प्लस बी डिफाइंड होना चाहिए, देन ओनली इट्स ट्रांसपोज विल बी टेकन। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर दो मैट्रिसेस के एडिशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया जाता है तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो सम है इट शुड बी डिफाइंड। थर्ड प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज के केस में हमने देखी थी वो ये थी कि अगर मुझे कोई मैट्रिक्स के ए का ट्रांसपोज लेना हो तो मैं क्या करूंगी, जो के नंबर है दैट विल कम आउट एज इट इज एंड विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि नंबर्स के केस में ट्रांसपोज मीनिंगलेस होता है, नंबर्स के केस में ट्रांसपोज डिफाइंड नहीं होता। ट्रांसपोज इज ओनली डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस। बट कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन के केस में क्या होगा, अगर तो के ए का अगर मुझे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है तो इसमें भी जो मैट्रिक्स है उसका तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना ही होगा। और अगर हम के की बात करें तो जैसे ट्रांसपोज में के एज इट इज बाहर आ गया था, यहाँ पर के का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा क्योंकि के एक स्केलर है एंड स्केलर क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिफाइंड होता है। दैट इज वाई यहाँ पर हम के स्टार ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैट्रिसेस के केस में स्केलर का मतलब है कोई रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को मैंने आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ इफ वी वांट टू टेक द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स आयटा ए, तो मैं क्या करूंगी, ए का तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना ही पड़ेगा, साथ में जो आयटा है इसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। तो यहाँ पर आयटा स्टार मीन्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ आई, दैट मीन्स कि ये माइनस आयटा इंटू ए स्टार हो जाएगा। Now the next property is for product matrix. In case of transposed, we discussed अगर मुझे ए बी का ट्रांसपोज लेना हो यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो तो मैं क्या करती हूँ, राइट टू लेफ्ट में से ओपन करूंगी, यानी कि पहले मैं बी का ट्रांसपोज लूंगी एंड देन आई विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई देम। ठीक है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट टू लेफ्ट हमें इसे ओपन करना है। अगर मुझे इसी सेम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना हो तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे राइट टू लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट यहां से ओपन करूंगी। ये ध्यान रहे कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ओपन करना है या फिर लेफ्ट टू राइट ओपन करना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर इसमें गड़बड़ हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ए बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, ए स्टार इंटू बी स्टार। तो अनलाइक द ट्रांसपोज ए बी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को लेफ्ट टू राइट हम ओपन करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए रेज़ टू पावर n। जैसे ट्रांसपोज के केस में हमने किया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह की ए रेज़ टू पावर n, यानी कि किसी मैट्रिक्स की पावर ले ली, उसका ट्रांसपोज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूंगी एंड देन विल मल्टीप्लाई इट n टाइम्स। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन के केस में भी है। अगर इसी सेम मैट्रिक्स ए रेज़ टू पावर n का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मुझे लेना हो तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूंगी, फिर जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ पर ए रेज़ टू पावर n निकाल कर फिर कंजुगेट लेना है या फिर पहले कंजुगेट लेकर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। So this was the properties of complex conjugate matrix. Now we move towards the third operation, that is Hermitian conjugation. हमने क्या किया अभी तक, ट्रांसपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन किए। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है उस पर मैं ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन दोनों साथ में अप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स मिलेगी एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है
उस ए मैट्रिक्स पर हमने ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन भी अप्लाई कर दिया, यानी कि इसके रोज और कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर दिया, साथ ही इसके जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी ले लिया। देन आई विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स बी एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज हर्मिशन कंजुगेट ऑफ ए। तो ये जो हर्मिशन कंजुगेट मैट्रिक्स होगी इसको हम लोग ए डैगर से डिनोट करेंगे। नाउ दिस ए के ऊपर इस प्लस का जो साइन है दिस इज नोन एज ए डैगर, ठीक है, इसे हम ए डैगर इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो हर्मिशन कंजुगेशन ऑपरेशन क्या हो गया कि ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन दोनों साथ में हम किसी मैट्रिक्स पर अप्लाई करें तो दिस विल बी नोन एज हर्मिशन कंजुगेशन ऑपरेशन एंड द हर्मिशन कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इट विल बी डिनोटेड एज ए डैगर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे मैथमेटिकली इस चीज को लिखना हो कि हर्मिशन कंजुगेट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, मैथमेटिकली हाउ आई विल राइट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हर्मिशन कंजुगेट होगा एक मैट्रिक्स ए का दिस विल बी डिनोटेड बाय ए डैगर। तो ए डैगर मींस मुझे ट्रांसपोज भी लेना है एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेना है। तो मैं क्या करूंगी, ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूंगी और जो भी रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज ले लूंगी, देन आई विल गेट द ए डैगर मैट्रिक्स। अब ये जो ट्रांसपोजिशन और कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन के ऑपरेशंस हैं उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्टली हमने क्या किया, हमने ये पढ़ा कि पहले मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूंगी उसके बाद ट्रांसपोज ले लूंगी। वी कैन डू इट वाइस वर्सा, या तो मैं पहले ए का ट्रांसपोज ले लूं देन जो भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। तो या तो ट्रांसपोजिशन पहले परफॉर्म कर लो या कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन परफॉर्म कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। नाउ वी हैव कि एक जो जनरल एलिमेंट होगा हर्मिशन कंजुगेट मैट्रिक्स का उसे हम कैसे लिखेंगे। बट एक जनरल एलिमेंट लिखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ऑर्डर होगा कॉम्प्लेक्स हर्मिशन कंजुगेशन मैट्रिक्स का वो कैसे लिखेंगे, क्या वो ऑर्डर चेंज होगा। अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं तो ट्रांसपोज के केस में मैंने देखा था कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m होता है, बट A स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ A का जो भी ऑर्डर होगा दैट इज m क्रॉस n। नाउ A डैगर में हम लोग A ट्रांसपोज एंड A स्टार दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ A डैगर। A डैगर का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m होगा, सेम एज दैट ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो A डैगर का ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में किया था। जैसे ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स हो गया था वैसे ही A डैगर का ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। Let us understand the Hermitian conjugation operation with an example. So we have a matrix A here like this और हमें A dagger लिखना है, यानी कि Hermitian conjugate of A लिखना है। Hermitian conjugate of A means कि हमें सबसे पहले complex conjugate लेना है A का and then we will take the transpose of resulting matrix. A स्टार अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगी, A के हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूंगी। तो पहले मैंने 3 - 2 आइटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, दैट वाज 3 + 2 आइटा, रख दिया। फिर सेकेंड एलिमेंट आइटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर रखा, एंड देन आई हैव टेकन द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 4 + आइटा, दैट वाज 4 - आइटा, एंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -3 वाज एज इट इज -3। तो इस तरह से मेरे पास A स्टार मैट्रिक्स आ गई। अब ये जो A स्टार मैट्रिक्स है इसका फर्दर मैं ट्रांसपोज लूंगी, देन आई विल गेट द A डैगर। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए मैं क्या करूंगी, इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया एंड इसकी जो सेकंड रो है उससे मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, तो मेरे पास A डैगर आ गया। तो इस तरह से हर्मिशन कंजुगेशन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो अगर मुझे ये पता है कि ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स कैसे लिखनी है तो मैं बहुत इजीली हर्मिशन कंजुगेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। नाउ अ जनरल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन कंजुगेट मैट्रिक्स इट विल बी रिटन लाइक दिस AJI स्टार। यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स AIJ है, ठीक है, AIJ इसका जनरल एलिमेंट है, तो क्योंकि हमने हर्मिशन कंजुगेशन परफॉर्म करना है दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड वी हैव टू टेक द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो AIJ का अगर मैं
हर एक एलिमेंट का ट्रांसपोज ले लूंगी। तो ट्रांसपोज के केस में मैंने ये देखा था कि ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज सेम एज द jth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर aij जनरल एलिमेंट है A का, तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो जनरल एलिमेंट होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, दैट विल बी AJI। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर AJI लिखा A डैगर के केस में। सेकेंड थिंग, जो ijth एलिमेंट होता है A स्टार का, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ aij। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर स्टार लगाया। तो A डैगर का इन जनरल एलिमेंट कैसे लिखेंगे? पहले तो जो ijth एलिमेंट होगा A का, उसे jith एलिमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। साथ में ये जो jith एलिमेंट बनेगा उसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन कंजुगेट मैट्रिक्स। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, उसका हर्मिशियन कंजुगेट A डैगर होगा, और सेकेंड मैट्रिक्स इज B जिसका हर्मिशियन कंजुगेट हम B डैगर से डिनोट कर रहे हैं, देन द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि टू फाइंड द हर्मिशियन कंजुगेट मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स का दो बार हर्मिशियन कंजुगेट लें तो क्या होगा। ट्रांसपोज के केस में हमने क्या देखा था, अगर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से लें देन वी गेट द मैट्रिक्स बैक। सिमिलरली अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स का फिर से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेती हूँ तो देन अगेन आई गेट द मैट्रिक्स बैक। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हर्मिशियन कंजुगेशन के केस में भी है कि अगर मैं एक हर्मिशियन कंजुगेट मैट्रिक्स का फिर से हर्मिशियन कंजुगेट ले लूं तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। दैट मीन्स कि एक मैट्रिक्स का हर्मिशियन कंजुगेट लेना 2 टाइम्स, दैट विल गिव मी द मैट्रिक्स बैक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिसेस के एडिशन का डैगर लेना है। अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं तो A प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल था, इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लो एंड देन ऐड देम। सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन की बात करूं तो A प्लस बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन कैसे लिया था, A का कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ले लो, B का कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ले लो एंड ऐड कर दो। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हर्मिशियन कंजुगेशन के केस में भी है। A प्लस बी का होल डैगर विल बी इक्वल टू A डैगर प्लस B डैगर, यानी कि इंडिविजुअल मैट्रिसेस का डैगर लेकर हम उन्हें ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ addition of two matrices. Now we have the third property that is Ka. Ka का डैगर लेंगे तो क्या होगा, अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं तो Ka का ट्रांसपोज was K directly it came out and we take the transpose of matrix A. अगर Ka का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना हो तो मैं क्या करूंगी, A का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना ही है, साथ में बिकॉज एक नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिफाइंड होता है तो K का भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द डैगर, Ka का डैगर अगर मुझे लिखना हो तो A का तो डैगर हम लेंगे, साथ में K का भी डैगर लेंगे। नाउ K का डैगर मीन्स K का स्टार एंड देन ट्रांसपोज। अब यहाँ पर K स्टार तो डिफाइंड है, किसी स्केलर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो डिफाइंड है, लेकिन किसी स्केलर का ट्रांसपोज डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हम K डैगर को किसके इक्वल करेंगे, K स्टार के, यानी कि K डैगर लेना दैट मीन्स कि K का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड द मैट्रिक्स। अगर मुझे किसी स्केलर का डैगर लेना हो तो मैं क्या करूंगी, उस स्केलर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है सिर्फ, लेकिन अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का डैगर लेना है तो मैं क्या करूंगी, उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लूंगी एंड देन आई विल ट्रांसपोज दैट। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज रिवर्सल लॉ फॉर प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है दो मैट्रिसेस का दैट इज ए बी, तो इसका डैगर क्या होगा। अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं तो ए बी का होल का ट्रांसपोज वाज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज के केस में हमने रिवर्सल लॉ फॉलो किया था, यानी कि राइट टू लेफ्ट रिवर्स से हमने इसे ओपन किया था। अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करूं तो एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट विल बी इक्वल टू ए स्टार एंड बी स्टार। कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन के केस में मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना था, यानी कि इसमें कोई रिवर्सल लॉ नहीं था, ट्रांसपोज के केस में रिवर्सल लॉ था। तो ए बी का होल डैगर क्या होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज भी ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी ले रहे हैं, तो इट विल बी सिमिलर टू द ट्रांसपोज। दैट मीन्स the Hermitian conjugate will also follow the reversal law
as in the case of transpose. AB का whole dagger will be equal to B dagger into A dagger. यहाँ पर भी मुझे right to left इसे open करना है. Last property is how to find out the dagger of A raised to power n. If we take the transpose, A raised to power n का transpose लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, original matrix का transpose ले लूंगी and then I'll multiply it n times. Similarly, अगर मुझे complex conjugation के केस में A raised to power n का complex conjugate लेना हो तो मैं क्या करूंगी, original matrix का complex conjugate लेके उसे n times multiply कर दूंगी. The same result is applicable in the case of Hermitian conjugate. A raised to power n का dagger will be equal to taking the dagger of original matrix A and then multiplying it n times. और यहाँ पर n will be a positive integer always. यहाँ पर जो भी हम matrices का पावर ले रहे हैं वो पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर ये नोट डाउन करने वाली है कि A शुड बी इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज, क्योंकि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी देन ओनली A raised to power n will be defined. Now we have the trace of a square matrix. Trace of a square matrix क्या होता है? This is a number which is associated with this square matrix. अभी तक हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए उससे हमें न्यू मैट्रिसेस मिली, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिला, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स मिली एंड देन वी गॉट द हर्मिशियन कंजुगेट मैट्रिक्स. तो ये सभी मैट्रिसेस थी, यानी कि ये सभी अरेंजमेंट्स थी. बट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज जस्ट अ नंबर. तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A whose general element is Aij and this is a square matrix. First thing about trace is that trace हमेशा एक square matrix का ही find out होता है. ठीक है, trace is always find for a square matrix. किसी भी arbitrary matrix का trace define नहीं होगा. How do we find this? किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रेस जो होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. कोई भी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन सबका अगर मैं सम कर दूं देन आई विल गेट अ नंबर व्हिच इज नोन एज ट्रेस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रेस जो है उसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से TR into A और SPA. यहाँ पे TR का मतलब क्या है? TR मीन्स ट्रेस. Now what does this SP means? Firstly, जो trace है it is also known as spur or the diagonal sum. Trace of a square matrix बोल दो या फिर spur of a square matrix बोलो या फिर diagonal sum of the matrix बोलो, तीनों सेम ही चीज है. So SP here stands for spur. SP into A means spur of the square matrix and TRA means trace of the matrix. So this is how we denote the trace of the matrix. Now how to find this? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स A 2 4 5 7 1 3 एंड 9 11 0. ठीक है, तो इस तरह की एक मैट्रिक्स मेरे पास है. इस मैट्रिक्स में मुझे ट्रेस निकालना है. व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ A? उसके लिए मुझे इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा. डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग लाई करते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल. इफ वी कैन सी हियर, ये जो डायगोनल है दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल फॉर मैट्रिक्स A. इस प्रिंसिपल डायगोनल में लाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर द डायगोनल एलिमेंट्स. तो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट्स ट्रेस विल बी पॉसिबल. तो 3x3 मैट्रिक्स में 3 डायगोनल एलिमेंट्स मुझे मिले 2 1 एंड 0. I'll add them up and I'll get the trace of this matrix. ठीक है, now mathematically trace of a matrix को किस तरह से represent किया जाता है? It is the sum of diagonal elements. Diagonal elements की एक definition हमने और की थी कि वो elements जिनमें row index and column index same हो. A general element of matrix is represented as Aij. तो अगर यही एलिमेंट में I और J इक्वल हो जाए, यानी कि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम हो जाए, देन दिस एलिमेंट विल बिकम द डायगोनल एलिमेंट एंड द जनरल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज AII. तो इसी तरह से हमने ये लिखा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डायगोनल एलिमेंट, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबका समेशन कर दो. नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. If we have the addition of more than 2 matrices, then how do we find the trace of that resulting matrix?
तो अगर मेरे पास बहुत सारी मैट्रिसेस हैं A, B, C, D एंड अप टू सो ऑन, तो इन सभी मैट्रिसेस के सम का मुझे ट्रेस लेना हो तो मैं कैसे लूंगी? इसके लिए मैं क्या करूंगी, जितनी भी मैट्रिसेस हैं उन सबका ट्रेस ले लूंगी सेपरेटली एंड देन आई विल एड अप ऑल ऑफ दीज ट्रेसेस. तो this will be equal to trace of A plus trace of B plus trace of C and so on. So this was a property for trace of the matrix. Next is the trace of product of finite number of matrices. That means कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं या फिर 2 से ज्यादा मैट्रिसेस हैं जिनका प्रोडक्ट डिफाइंड है, उस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं तो उनके प्रोडक्ट का जो ट्रेस होगा वो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. वो प्रॉपर्टी क्या है कि साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन्ड हो, साइक्लिक ऑर्डर मींस ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा एंड सी के बाद फिर से ए आता. तो दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर. तो ए बी सी का ट्रेस ले लो या फिर बी सी ए का, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है. बी के बाद सी आएगा एंड सी के बाद देन ए आएगा. फिर एक और परम्यूटेशन बन सकता है इसका सी ए बी. ठीक है, ट्रेस ऑफ सी ए बी. यहाँ पर जो साइक्लिक परम्यूटेशन है वो ध्यान में रखना है कि ए बी सी मैट्रिसेस या बी सी ए मैट्रिसेस अगर हम लिख रहे हैं तो जो साइक्लिक ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो मेंटेन रहे, यानी कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है एंड सी के बाद ए आता है. दिस टाइप ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन शुड मेंटेन. साइक्लिक परम्यूटेशन अगर हम करें तो 3 जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे, इन तीनों का जो ट्रेस होगा वो सेम होगा. सिमिलर अप्लाइज टू ऑल ऑफ दीज मैट्रिसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड बी ए, 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो ए बी एंड बी ए का जो ट्रेस होगा वो सेम होगा बिकॉज ए के बाद बी आता है एंड बी के बाद ए आता है. तो 2 साइक्लिक परम्यूटेशन बनेगी ए बी एंड उसके बाद बी ए. तो दोनों का जो ट्रेस होगा वो सेम होगा. एंड यही सेम चीज मेनी मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल होती है. ठीक है, अगर मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस है, 1000 मैट्रिसेस है, लैक्स मैट्रिसेस है, सभी मैट्रिसेस के केस में ये जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ट्रेस के लिए, दिस विल बी एप्लीकेबल. So this was all about today's lecture. In this lecture, we studied about the properties of transpose of the matrix, and then we studied about 2 more operations which were complex conjugation and Hermitian conjugation. हमने ये देखा कि complex conjugate matrix किस तरह से find out करते हैं and Hermitian conjugation matrix कैसे find out करते हैं. Complex conjugate matrix और Hermitian conjugate matrix के केस में कुछ properties discuss की. And then we discussed about the trace of a matrix. In the next lecture, we'll be discussing about determinants. यहाँ तक हमने जो भी स्टडी किया that was basic matrix algebra. But अब और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैट्रिसेस में, जैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सेट्रा, उन सबको स्टडी करना. बट उन सब मैट्रिसेस को स्टडी करने से पहले हमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज डिटर्मिनेंट्स इन दोज टॉपिक्स. तो बिफोर मूविंग फर्दर वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस. मैट्रिसेस के केस में हम लोग डिटर्मिनेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हिच डिटर्मिनेंट्स पोजेस. डिटर्मिनेंट्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद then we will move towards the special matrices and some of the advanced operation on matrices like adjoint, inverse, etc. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.